آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کی خواہش پر مہا شیوراتری کے موقع پر ایلورا کے گھرنیشور مندر اور اطراف میں چلائی گئی خصوصی مہم۔ عوامی نمائندوں، سرکاری افسران و ملازمین، NGOز اور عوام نے لیا مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ۔ سینٹرل ماریڈ کی جانب سے گھاٹی اسپتال کے احاطے میں ماریڈ کون 2026 کے تحت آرگن ایگزیبیشن منعقد۔ رابطہ وزیر سنجے شرساٹ سمیت مختلف سیاسی قائدین نے دی نمائش کو وزٹ۔ ورلڈ ریڈیو ڈے کے موقع پر آج شہر میں کیا گیا ریڈیو نمائش کا اہتمام۔ مختلف کمپنیوں کے 75 ماڈلز ایگزیبیشن میں شامل۔ عوام کی بڑی تعداد میں شرکت نے ثابت کیا آج بھی لوگ کرتے ہیں ریڈیو سننا پسند۔ اور ضلع ناندیڑ کے مضافات ڈونگر گاؤں میں ایک پولٹری فارم میں لگی بھیانک آگ، 1000 بے زبان مرغیوں سمیت دیگر سامان جل کر خاک۔ پولٹری فارم اونر کا لاکھوں روپیوں کا نقصان، حکومت و انتظامیہ سے انصاف کا کیا مطالبہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مہا شیوراتری کے موقع پر ایلورا میں خصوصی صفائی مہم چلائی گئی، جس میں اراکین اسمبلی، سرکاری افسران و ملازمین، NGOز اور عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مہا شیوراتری کے موقع پر ویرول میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی آمد متوقع ہے۔ اسی پس منظر میں ضلع انتظامیہ، مقامی خود مختار اداروں اور سماجی تنظیموں نے مشترکہ طور پر صفائی مہم کا انعقاد کیا۔ اس مہم میں تقریباً 2000 افسران، ملازمین اور رضاکار جھاڑو لے کر سڑکوں پر اترے اور اہم مقامات کی صفائی کی۔ یل گنگا ندی، مالوجی راجے بھوسلے گڑھی، اریہن چوک، ایلورا غاروں کے اطراف اور دیگر عوامی مقامات پر خصوصی صفائی کی گئی۔ کچرا جمع کرنے والی گاڑیوں کی پوجا کے بعد مہم کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی پرشانت بمب، ضلع کلکٹر دلیپ سوامی، ضلع پریشد کے CEO انکت، پولیس سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر ونے کمار راٹھوڑ سمیت مختلف محکموں کے افسران موجود تھے۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے کہا کہ صفائی ہی اصل ایشور سیوا ہے اور تیرتھ استھان پر آنے والے عقیدت مندوں کو صاف ماحول فراہم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رکن اسمبلی پرشانت بم نے بھی صفائی میں تسلسل برقرار رکھنے پر زور دیا۔ مختلف سرکاری محکموں اور رضاکار تنظیموں نے اپنے اپنے علاقوں میں شراکت کر کے صفائی انجام دی تاکہ مہا شیوراتری کے موقع پر آنے والے عقیدت مندوں کو بہتر سہولیات میسر آ سکیں۔ ٹرینی IAS آفیسرز نے اسمارٹ سٹی دفتر کے علاوہ کھام ندی بازآباد کاری پروجیکٹ کو وزٹ دی۔ لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن مسوری کے 2025 بیچ کے IAS تربیتی افسران نے اسمارٹ سٹی اورنگ آباد کے ریویونیشن پروجیکٹ کا مطالعاتی دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد ترقیاتی منصوبے کے نفاذ اور انتظامی نظام کو قریب سے سمجھنا تھا۔ میونسپل کمشنر جی شریکانت کی رہنمائی میں منعقدہ اس پروگرام کے دوران اسمارٹ سٹی کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر رویندر جوگدنڈ نے افسران کا خیر مقدم کیا۔ وفد نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کر کے شہر کی نگرانی کے جدید نظام کو دیکھا، جبکہ IT پروجیکٹ مینیجر فیض علی نے تفصیلی معلومات پیش کی۔ بعد ازاں افسران نے کھام ندی بحالی منصوبے کا جائزہ لیا، جہاں OSD اسد اللہ خان نے آلودگی کے خاتمے اور خوبصورتی کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر سنجے اسپیکر ارپتا شرد اور نعمان خان بھی موجود تھے۔ دورے میں شریک آفیسران میں سواتی SR رنگامن، شویتا پریا، وبھور بھاردواج، سوربھ سمن، ممتا گوکل RK، ابھیشیک سنگھ اور پیوش گارتھالا شامل تھے۔ سینٹرل ماریڈ ایسوسی ایشن کی جانب سے ماریڈ کون 2026 کے تحت گھاٹی اسپتال میں آرگن ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا۔ اس آرگن ایگزیبیشن میں انسانی اعضاء کے حقیقی نمونے، کلینکل معلومات اور جان بچانے والے طبی نکات پیش کیے گئے ہیں، جس سے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز اور طلباء کو بڑا فائدہ ہوگا۔ پروگرام ڈین ڈاکٹر شیواجی سکرے کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ ڈاکٹر ارچنا کلیانکر، ڈاکٹر بھارت سونونے اور ڈاکٹر میناکشی بھٹاچاریہ کی رہنمائی نمایاں رہی۔ سینٹرل ماریڈ سیکریٹری سوپنل کیندرے، صدر سچن پاٹل اور GMC اورنگ آباد کے صدر چیتنیا دھاورے سمیت ٹیم نے اہم کردار ادا کیا۔ اسنیہا گنالے، شیروانی قدرے، ساحل اسائی، ساحل سالوے اور دیگر اراکین کی محنت سے نمائش کامیاب رہی۔ یہ سرگرمی ماریڈ کون 2026 کی اہم تعلیمی پیش رفت ثابت ہوئی، جس نے طبی تعلیم و تحقیق کو تقویت دی۔ تمام منتظمین کو مبارکباد دی گئی۔
ऑर्गन इथे ठेवलेले आपल्या बॉडीमध्ये जितके पण ऑर्गन्स आहेत ब्रेन पासून ते सर्व ऑर्गन्स जसं ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स अँड अदर जितके पण ऑर्गन्स आहेत आपल्या बॉडीमध्ये, जसं स्पायनल कॉर्ड झाले त्याचं ट्रान्सफर सेक्शन, ब्रेनचं ट्रान्सफर सेक्शन, त्याचे दोघं हेमिस्फिअर, हार्टचे चेंबर्स वगैरे सर्व प्रकारचे ऑर्गन्स आपण इथे एक्झिबिशनमध्ये ठेवलेले आहेत, जेणेकरून मुलांना पूर्ण माहिती किंवा पूर्ण इन्फॉर्मेशन त्यांना मिळू शकेल. हे अवयव प्रदर्शन आम्ही 6वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ठेवलेलं आहे. छत्रपती संभाजीनगर मधले तब्बल 30 पेक्षा जास्त शाळा ह्यामध्ये सहभागी होणार आहेत आणि हजारों जास्त शालेय विद्यार्थ्यांना ह्या प्रदर्शनाचा लाभ घेता येणार आहे. यामध्ये आम्ही लाईव्ह ह्युमन ऑर्गन्स, जे की फक्त गव्हर्नमेंट कॉलेजेसलाच अथॉरिटी असते दाखवायची, ते सगळे दाखवणार आहोत. याचा उद्देश एकच आहे की शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वैद्यकीय शास्त्राबद्दल आम्हाला त्यांच्यामध्ये त्यांची आवड निर्माण करायची, हा याचा उद्देश है. वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर आज शहर में किडनी की मुख्तलिफ बीमारियों से मुताल्लिक आवाम में बेदारी पैदा करने खुसूसी प्रोग्राम रखा गया. आजच्या पत्रकार परिषद आपण याची घेतली होती की येत्या 22 तारखेला आपण एक कार्यक्रम घेणार आहोत संत एकनाथ रंगमंदिरामध्ये. जागतिक किडनी दिवस या निमित्ताने आपण किडनी दाते, आतापर्यंत जे किडनी ट्रान्सप्लांट झालेले आहेत या सगळ्या दात्यांना एकत्र बोलवून त्यांचं कौतुक सोहळा, त्यांना प्रोत्साहन, त्यांचं इंटरॅक्शन, त्यांचे प्रश्न उत्तरं, त्यांचे काही क्वेरीज असतील तर त्याचं आपण सोल्युशन त्यांना सांगणार आहोत. आणि एकंदरीत हा उपक्रम आपण गेल्या 5 वर्षापासून करत आहोत. डॉक्टर बर्नेला, त्यांच्या डॉक्टर बर्नेला किडनी केअर, ओरिओन सिटी केअर हॉस्पिटल आणि IMA सुद्धा या कार्यक्रमात सहभागी आहे. अशा तिघजणं मिळून हा आपण उपक्रम करत आहोत, ज्याने जनजागृती पण होईल की सगळ्या लोकांना किडनी ट्रान्सप्लांट म्हणजे किडनी डोनेट करणं हे किती महत्त्वाचं आहे. तुम्ही एका माणसाला, एका व्यक्तीला, एका रुग्णाला जीवनदान देऊ शकता आणि एका माणसाला 2 किडनी असतात. एका किडनी डोनेट केल्याने त्या पेशंटला काहीही त्रास होत नाही, पण एक दुसरा माणूस त्याच्यामुळे त्याला जीवनदान मिळतं. हे एकंदरीत जनजागृती करणं, प्लस जे किडनी डोनर्स आहेत ज्यांनी डोनेशन केलेलं आहे त्यांना प्रोत्साहन करणं, त्यांचं कौतुक सोहळा करणं हा या कार्यक्रमाचं किडनी ट्रान्सप्लांट किंवा डोनेट करण्याच्या बाबतीत अनेक समाजामध्ये अनेक गैरसमज आहे, याबाबत काय सांगता? समाजामध्ये गैरसमज म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे किडनी आजार मला का झाला इथून पेशंटची सुरुवात होते. कारण की 90% किडनी आजार हे पेनलेस असतात, त्याच्यामध्ये त्रास होत नाही. आणि जेव्हा पेशंट्स हॉस्पिटलमध्ये येतात तेव्हा त्यांचं किडनी फंक्शन कमी झालेलं असतं आणि जेव्हा डॉक्टर त्यांना सांगतात की बाबा तुझं किडनीचं फेल्युअर आहे आणि तुला पुढील उपचार लावा लागतात, सगळ्यात मोठा हा फॅमिलीला खूप मोठा सेटबॅक असतो. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे जो आजार दुखत नाही तो मला का झाला किंवा मला कळाला का नाही, हे त्याच्या मागचं एक चित्र फॅमिलीसमोर राहतं आणि आपल्याला त्याबद्दल मग त्यांना सांगणे, त्या आजाराची लक्षणं सांगणे. तर माझं वर्ल्ड किडनी डेमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं असतं की किडनी आजार होऊच नाही. का बाबा, डायबिटीजसारखा आजार आहे, तो आपण जर व्यवस्थित कंट्रोल केला तर किडनी आजार होणारच नाही. पण आपण जर बघितलं तर जगामध्ये 50% किडनी फेल्युअरचं कारण हे अनकंट्रोल्ड शुगर, डायबिटीज आणि ब्लड प्रेशर आहे. एक साधे शिव जयंती के मौके पर हर साल शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं, जिसके तहत क्रांति चौक इलाके में स्कूली तलबा छत्रपति शिवाजी महाराज की सवानह का मुताला करने लगे हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज की सवानह हयात और उनकी बहादुरी से नई नस्ल को रोशनास कराने के मकसद से इस खुसूसी हफ्तावार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. इस मौके पर उर्दू और मराठी स्कूलों के तलबा ने शिव चरित्र का बाकायदा मुताला और इज्तिमाई क़िरात की. हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई तलबा ने एक साथ शिरकत करते हुए समाजी हम आहंगी और कौमी यकजहती का पैगाम दिया. मुंतज़मीन के मुताबिक ऐसे प्रोग्राम तलबा में तारीख़ से वाबस्तगी, फ़ख्र और हौसला पैदा करते हैं. शिव जयंती के पस मंज़र में मुनक़्क़िद होने वाला ये हफ़्ता शहर में जज्बे इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश करार दिया जा रहा है. परभनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर UBT ने मुस्लिम उम्मीदवार को मेयर बनने का मौका फराहम करवाया, जिस पर शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान और रियासती वज़ीर संजय शिरसाठ ने क्या तबसरा किया, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़ुबानी. संजय शिरसाठ ने कहा कि परभनी में UBT का मुस्लिम मेयर बनना पार्टी की पुरानी मराठी मानूस वाली सोच से हटकर है और ये हिंदू वोटों की तकसीम के बाद नई हिकमत अमली है. 50 खो के मामले पर उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाने वाले खुद समझौते कर रहे हैं. चंद्रपुर इसकी वाज़ेह मिसाल है और आगे भी ऐसे समझौते होंगे. उस्मानाबाद में हिमायत के सवाल पर कहा कि मकामी सतह पर सपोर्ट मिल रही है, मगर हतमी फ़ैसला एक नाथ शिंदे करेंगे. महायुति मजबूत है, शिंदे की मीटिंग को नाराज़गी से जोड़ना गलत है. जायज़ा मीटिंग पर पार्टी का अमल होता है.
वजारत में रिश्वत केस पर सख्त कार्रवाई की बात कही और आचार संहिता पर अमल ज़रूरी बताया। कुंभी सर्टिफिकेट की जांच पेचीदा है मगर हुकूमत रिजर्वेशन के वादे पर कायम है। संजय राउत पर तनकीद करते हुए कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानात बंद होने चाहिए। 100 करोड़ बोगस बिलिंग की शिकायत पर कमेटी बन चुकी है और कसूरवारों पर कार्रवाई होगी। पीका बीमा और वजारती रद्दोबदल पर कहा कि हतमी फैसला वजीर आला एकनाथ शिंदे का इख्तियार है। उबाटा गटाचा पहिला मुस्लिम महापौर परभणीला झालेला आहे। खऱ्या अर्थानं मुस्लिम माणसाला आमचा विरोध नाही किंवा मुस्लिम होऊ नये अशी आमची धारणा नाही, परंतु ज्या पद्धतीने शिवसेनेची रचना झाली होती, ज्या पद्धतीने शिवसेना चालली होती, त्या मूळ गाभ्याला दिलेला हा छेद आहे। मुंबईमध्ये मराठी माणसा व्यतिरिक्त कोणी महापौर होऊ नये, हिंदी भाषिक सुद्धा नसावा, मुस्लिम तर दूरच, अशी जी भावना यांची होती। मग मराठीचे हक्क न्याय म्हणजे हक्कासाठी आम्ही लढतोय, मराठी माणसासाठी लढतोय असे म्हणणारे हे आता गेले कुठं? तुम्हाला गुजराती चालत नाही, पंजाबी चालत नाही, सिंधी चालत नाही, कोणताच समाजाचा इतर चालत नाही ना, हे समाजाचा तुम्हाला चालतो, याचा अर्थ तुमची असलेली भूमिका आता बदललेली। तुम्ही बोलतात ते करतात हे आता महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे। हिंदू वोटचं विभाजन झाल्यामुळं आता इतर वोट आपल्याकडे मिळावेत यासाठी उद्धव ठाकरेने केलेला हा प्रयत्न आहे। नाही आम्ही जे काही आरोप, आमच्यावर जे आरोप व्हायचे ना, आता हेच आरोप यांच्यावर उलटलेले, हेच लोक विकले गेलेले। चंद्रपूरमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल या कशा पद्धतीने यांच्यावर त्यांनी तडजोडी केलेल्या आहेत आणि आता अशा तडजोडी महाराष्ट्रामध्ये सर्वीकडे उभाटाला करावं लागतील ही वस्तुस्थिती आहे। नाही, धाराशिवमध्ये तसं नाहीये। काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी शिवसेनेला पाठिंबा द्यायचं निश्चित त्यांनी सांगितलेलं आहे। कोणी पाठिंबा देत असेल तर पाठिंबा घेऊ नये असं काही आमच्याकडे करार झालेला नाही, परंतु याचा निर्णय माननीय एकनाथ शिंदे साहेब घेतील आणि आम्ही भाजपच्या विरोधात काहीतरी षडयंत्र करतोय असं समजण्याचं कोणतंही कारण नाही। पण हे समीकरण जर वापरलं तर छत्रपती संभाजीनगरमध्येही शक्य आहे। नाही, असं समीकरण सगळीकडे चालत नसतात आणि आम्ही एकदा सांगितलंय, शिंदे साहेबांनी सांगितलंय, देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सांगितलंय की आम्ही महायुतीमध्ये आहोत आणि महायुतीच्या पद्धतीनेच आमचा कारभार चालू राहील, म्हणून सगळीकडे महायुतीचेच जिल्हाध्यक्ष हे जिल्हा परिषदेवर राहतील। शहर औरंगाबाद में शिवसेना शिंदे ग्रुप के अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आने लगे हैं। राब्ता वजीर संजय शिरसाट और डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़ के दरमियान लफ्जी नोक झोंक के बाद अब शहर में मुस्तकबिल के वजीर आला के बैनर्स लगने से सियासी हलकों में ज़बरदस्त बहस व मुबाहिसे जारी हैं। वाज़ेह हो कि चंद रोज़ कबल जंजाड़ ने पालक मंत्री पर तनकीद करते हुए सवाल उठाया था कि क्या वो अपनी बेटी को महापौर बनाना चाहते हैं। इस पर जवाब देते हुए शिरसाट ने तंज़िया अंदाज में कहा था, अच्छा काम कीजिए और महाराष्ट्र के वज़ीर आला बन जाइए। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चहमगोइयाँ तेज़ हो गई थीं। इसी पस मंज़र में क्रांति चौक पर मुस्तकबिल के महाराष्ट्र के वज़ीर आला के उन्वान से बैनर्स आवेज़ा किए गए, जो युवा सेना के ओहदेदार और जंजाड़ के हामी आदित्य दहीवाल की जानिब से लगाए जाने की बात कही जा रही है। इसे पालक मंत्री को जवाब देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इन बैनर्स के बाद शिवसेना की गिरोहबंदी एक बार फिर मंजर आम पर आ गई है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसका असर आइंदा सियासी सफ बंदियों पर भी पड़ सकता है। वर्ल्ड रेडियो डे के मौके पर शहर में आज रेडियो नुमाइश रखी गई, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों के छोटे बड़े 700 रेडियो शामिल किए गए। इत्तलाआत और तफरीह का मौसर ज़रिया समझे जाने वाले रेडियो का सफ़र निहायत दिलचस्प रहा है। इस खुसूसी नुमाइश में 1940 की दहाई से लेकर मौजूदा दौर तक के मुख्तलिफ अदवार के रेडियो एक ही छत के नीचे रखे गए हैं। टीवी के साइज़ के बड़े रेडियो सेट्स से लेकर जेब में आने वाले ट्रांजिस्टर तक रेडियो की बदलती हुई शक्ल और टेक्नोलॉजी का इर्तिक़ा यहाँ साफ दिखाई देता है। नुमाइश में नेशनल इको मॉडल 1960 का U764 और 3 बैंड वाला छोटे साइज़ का रेडियो ख़ास तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। बाज़ पुराने रेडियो ऐसे भी हैं जिनके गर्म होने के बाद ही आवाज़ आती है, जो नई नस्ल के लिए दिलचस्पी का बाइस है। संजय पवार के मुताबिक इस नुमाइश का मकसद नौजवानों को पुरानी रेडियो सकाफ़त से रोशनास कराना और सुनहरी दौर के गीतों की याद ताज़ा करना है। आज विश्व रेडियो दिवस आहे। युनेस्कोने 2011 पासून विश्व रेडिओ दिवस 13 फेब्रुवारी असे डिक्लेअर केलेले आहे। गेल्या 3 वर्षापासून त्या निमित्ताने मी माझ्या संगीत संग्रहाचा, रेडिओ संग्रह आणि संगीत संग्रहाचा मी प्रदर्शन दरवर्षी ठेवतो। हा 3रा वर्ष आहे। या संगीत प्रदर्शनासाठी शालेय विद्यार्थी,
ज्येष्ठ नागरिक आणि बरेच संगीतप्रेमी रेडिओप्रेमी येऊन भेट देतात. माझ्या प्रदर्शनामध्ये 700 पेक्षा जास्त रेडिओ आहेत आणि हे संकलन करण्याचं जे सोर्स आहे ते आहेत इथला आठवडी रविवारचा बाजार, तिथं जुन्या वस्तू येतात. मुंबईचा चोर बाजार आहे. पुन्हा मार्केट प्लेसवरून, OLX वरून, व्हॉट्सअप ग्रुपवरून मी या सगळ्या वस्तूचं संकलन करतो. इव्हन स्क्रॅपच्या दुकानावरून पण काही मला वस्तू मिळतात, त्याचं संकलन करून मी माझ्या पार्ट्स रिपेयरिंगला कामा येतात. वैलेंटाइन डे के मौके पर मोहब्बत करने वालों की जानिब से अपने आशिक व माशूक को गुलाब पेश करने के सबब शहर में अचानक फूलों की मांग में इजाफा हो गया। फरवरी को मोहब्बत का महीना कहा जाता है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के पेश नज़र बाज़ारों में खासी रौनक है। मोहब्बत के इजहार के लिए सबसे ज़्यादा गुलाब को पसंद किया जाता है। इसी वजह से सुर्ख, सफ़ेद, पीले और गुलाबी गुलाब की तलब बढ़ गई है। सुर्ख गुलाब मोहब्बत की अलामत समझा जाता है, इसीलिए नौजवानों में सुर्ख गुलाब और दिलकश बुके सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। सफ़ेद गुलाब मासूमियत, पीला दोस्ती और गुलाबी फूल इज़्ज़त व सताइश की अलामत माना जाता है। सोशल मीडिया के असर से हार्ट शेप अरेंजमेंट और नाम के साथ कस्टमाइज बुके भी ट्रेंड में हैं। सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि शादीशुदा जोड़े और ख़ानदान भी एक दूसरे को गुलाब पेश करके अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। इधर शादियों के सीज़न की वजह से तकरीबात और प्री वेडिंग शूट्स में भी सुर्ख और सफ़ेद गुलाब की सजावट का रुझान बढ़ता जा रहा है। मांग में इजाफे के बाइस कीमतों में कुछ बढ़ोतरी हुई है, ताहम ख़रीदारों का जोश बरकरार है। मजमूई तौर पर वैलेंटाइन डे के मौके पर शहर भर में मोहब्बत की खुशबू बिखरी हुई है और गुले गुलाब बदस्तूर इजहार मोहब्बत की सबसे मकबूल अलामत बना हुआ है। डे भी आ गया, शादी की तीज भी आ गई, तो शादी और ये वैलेंटाइंस डे दोनों एक साथ में आ गए ना, तो उसकी वजह से माल का जो डबल होना था वो ट्रिपल हो गया। यानी कि जो फूल हम बेचते हैं 20 रुपए में, वो फूल खरीद रहे हम 45 रुपीज पे, तो उसका रेट अभी 60-70 हो गया। अब वो जो रेगुलर ग्राहक आते हैं वो लोग नाराज हो जा रहे हैं, मेन बात ये है। और ये 14 तक ही है वैलेंटाइन डे, 14 के बाद फिर रेट दम से उतार चढ़ाव चलते रहेंगे और 14 के बाद माल गिर जाएंगे। AMC में बीजेपी के नौमुंतखबा कारपोरेटर्स की तादाद की मुनासिबत से उनके 5 कोऑपिट मेंबर्स नामजद किए जा सकते हैं, लिहाजा इन ओहदों को हासिल करने बीजेपी के ओहदेदारान और वर्कर्स में रस्सा खेच शुरू हो चुका है। बीजेपी की कामयाबी के बाद अब सब की नज़रें मंजूर शुदा 5 नशिस्तों पर टिकी हुई हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस बार वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के रिश्तेदारों को तरजीह न देने के इशारे मिल रहे हैं, जबकि पुराने और वफादार कारकुनान को आगे लाने पर गौर हो रहा है। इस फैसले से कई बाअसर सिफारिशात के बावजूद जगह मिलना मुश्किल हो सकता है। आया रहे कि दरख्वास्तों की जांच कोर कमेटी करेगी और हतमी फ़ैसला वज़ीर आला और रियासती सदर की सतह पर होगा। मुमकिना बगावत से बचने के लिए 2.5 साल के रोटेशन फार्मूले पर भी गौर जारी है, जिसके बाइस उम्मीदवारों में बेचैनी और दिलचस्पी उरूज पर है। पैठन नगर पालिका में कोऑपिट मेंबर की तकर्री में ताख़ीर हो रही है। बताया जा रहा है कि विलास भुमरे को वक्त न मिलने के सबब ये अमल ताख़ीर से हो रहा है, जिससे उम्मीदवारों में बेचैनी पाई जा रही है। पैठन नगर पालिका के इंतखाबात के नताइज को 2 माह गुजर चुके हैं, मगर अब तक कोऑपिट मेंबर का इंतखाब नहीं हुआ, जिनमें शिंदे सेना को 25 नशिस्तों पर वाज़े अक्सरियत हासिल हुई, जबकि बीजेपी को 4 नशिस्तों पर और कांग्रेस को 2 और दीगर को 1 नशिस्त पर, इसी तरह एनसीपी को 1 नशिस्त पर कामयाबी मिली। अक्सरियत की बुनियाद पर 3 कोऑपिट अराकीन मुकर्रर किए जा सकते हैं। इसके लिए शिंदे सेना के दर्जनों ओहदेदारान, साबिक कारपोरेटर्स, ताजिर, डॉक्टर, वकला और सहाफ़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की है और पार्टी क़यादत से राब्ते तेज़ कर दिए हैं। रियासत की बेशतर बल्दियात में ये अमल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन पैठन में यह फ़ैसला अभी भी बाकी है। ज़राए के मुताबिक ज़िला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात की मसरूफियात के बाइस ताख़ीर हुई है। चूँकि हतमी फ़ैसला विलास भुमरे के इख्तियार में है, इसलिए पूरे शहर की नज़रें उन्हीं पर टिकी हैं। ताख़ीर बढ़ने से उम्मीदवारों की बेचैनी में इजाफा हो रहा है और सबको ऐलान का इंतज़ार है। शहरियान की सहूलत के लिए म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से शहर में पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किया जा रहा है, जिसके लिए नई इमारत का तामीरी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब इसमें सिर्फ लिफ्ट नस्ब करना बाकी है। ये इत्तला मुत्तल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। सिडको N11 में स्मार्ट सिटी फंड के तहत तकरीबन 12 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की इमारत तामीर की गई है।
प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान की निगरानी में जारी ये काम अब आखिरी मरहले में है और सिर्फ लिफ्ट की तनसीब बाकी रह गई है, जिसके लिए मुताल्लिका महकमे से इजाज़त दरकार है। मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के मुताबिक इमारत तैयार है, ताहम अस्पताल को फ़ाल बनाने के लिए ज़रूरी मशीनरी, माहिर डॉक्टर और दीगर अमले के तकर्री के साथ उनकी तनख्वाहों के इंतज़ामात अभी बाकी हैं। इसी मकसद के तहत नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM को एक मुफस्सल तजवीज़ रवाना की गई है। अस्पताल में CT स्कैन मशीन, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, पैथोलॉजी लैब, 62 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंडोर वार्ड्स और 10 ICU बेड्स की सहूलत दस्तयाब होगी। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ और दीगर मुलाजिमीन समेत तकरीबन 60 अफराद पर मुश्तमिल अमला दरकार होगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की माली हालत कमज़ोर होने के सबब अखराजात बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए मरकज़ी हुकूमत से मंजूरी मिलते ही अस्पताल अवामी खिदमत के लिए शुरू कर दिया जाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीमात और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इश्तराक से म्यूनसिपल तलबा के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले रखे जा रहे हैं, जिसमें फ़ातेह खिलाड़ियों में ओलंपिक खिलाड़ियों के हाथों इनामात तकसीम किए जाएंगे। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। औरंगाबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम और स्पोर्ट्स सेक्शन के इश्तराक से सेंट्रल स्कूलों की सतह पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट मुनक़िद किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के तहत रस्सी खींच, गोला फेंक, क्रिकेट, रनिंग और बैडमिंटन के मुकाबले जारी हैं, जिनमें उर्दू और मराठी मीडियम स्कूलों के तलबा व तालिबात भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। मुकाबलों में कामयाब होने वाले खिलाड़ियों को 26 फरवरी को डिवीजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा तकरीब के दौरान रोइंग के ओलंपिक खिलाड़ी विनोव भुटकर के हाथों इनामात दिए जाएंगे। काबिल ज़िक्र है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत खेलों के फ़रोग़ के लिए मुसलसल सरगर्म हैं। उनकी पहल पर शहर में नए प्लेग्राउंड कायम किए गए हैं और म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा को मुख्तलिफ खेलों से जोड़ा जा रहा है, जिसके नतीजे में कई तलबा नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स तक रसाई हासिल कर रहे हैं। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर और सदर शोबे तालीम अंकुश पांडे की रहनुमाई में म्यूनसिपल ज़िला परिषद और प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा के लिए भी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। अब तक तकरीबन 300 असातिज़ा दरख्वास्तें जमा करा चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जल्द ही असातिज़ा की टीमें तश्कील देकर मैचों का आगाज़ किया जाएगा। ज़िला उस्मानाबाद के वाशी में पवन चक्की प्रोजेक्ट की मशीनरी चोरी मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 43,35,000 रुपये मालियत का मसरूक़ा सामान जब्त किया है। इस मामले में 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करने की कार्रवाई जारी है। इस हादसे में किसान देवीदास मोहन केदारे को तकरीबन 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इत्तलात के मुताबिक गांव के ट्रांसफार्मर में खराबी के बाद बरक़ी तारों में आपसी रगड़ से शॉर्ट सर्किट हुआ। पोल्ट्री शेड के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों के बाइस अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा शेड आग की लपेट में आ गया। आग में तकरीबन 1000 चूजे हलाक हो गए, जबकि ट्रैक्टर और पोल्ट्री का सामान भी जलकर राख हो गया। मकामी अफराद ने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। मुतासरा किसान ने सरकारी सतह पर पंचनामा करके मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया है। काल अचानक इथं बाजूला डिपो आहे, त्या डिपोवर बार झाला आणि इथून बाजूलाच MSCBची लाईन गेलेली आहे। मग त्या केबलला काही शॉर्ट सर्किट झाले, काही समजायला आकार नाही। मग त्याचं शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळं या आमच्या शेडवर म्हणजे पोल्ट्री फार्म केलेला आहे त्याच्यावर त्याचे थिलंगे पडले आणि त्याच्यामध्ये या पोल्ट्री फार्मला आग लागली। आता इथं दुपारचा टाइम असल्यामुळं कोणी माणसंही नव्हती विझवायला, एक मुलगाच होता। त्याच्यामुळं या सर्व पोल्ट्री फार्मला आग लागून याच्यामध्ये जवळपास 1000 पिल्ले आणलेले होते कोंबडीचे, जवळपास 70 ते 80 हजार रुपयाचे पिल्ले आणि त्याच्यासाठी जवळपास 8 ते 9 क्विंटल खाद्य आणलं होतं। ते जवळपास 50,000 रुपयाचं खाद्य आणि या इथं शेड पोल्ट्री फार्म मध्येच एक शेड होता, त्याच्यामध्ये ते ट्रॅक्टर असल्यामुळे ट्रॅक्टर सुद्धा तिथंच सोडलेला दररोज राहायचं, त्याच्यामुळे ते ट्रॅक्टरचा भाग सुद्धा जळाला आणि इतर साहित्य जे काय याच्यासाठी आणलं होतं कोंबड्याच्या संगोपनासाठी, पाण्याच्या टाक्या होत्या, त्याचं खाद्य आहे आणि थारे आहेत, जवळपास 4 ते 5 लाख रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे। गरीब माणसं कशाला झाला? ते दिसतालं ना, वरून तार ते शॉर्ट सर्किट झाला केबलचा आहे आणि ते आम्ही MSCBला तसं म्हणलं होतं की बा इथून जवळून तार टाकण्याऐवजी थोडं दुरून घेतलं तर बरं होईल। जिला नांदेड़ के मज़ाफ़ात डोंगर गांव में शॉर्ट सर्किट के सबब एक पोल्ट्री फार्म में भयानक आग लग गई, जिसमें 1000 मुर्गियों समेत
एक ट्रैक्टर और उसमें रखा गया सामान जलकर खाक हो गया। 12 फरवरी को खुफिया इत्तला मिलने पर वाशी पुलिस ने सर्वे नंबर 279 बी के खेत इलाके में छापा मारा। सेरेंटिका कंपनी की विंड मिल से चुराई गई कॉपर केबल का बड़ा जखीरा छुपा कर रखा गया था। पुलिस एहलकार कपिल बोरकर और गणेश शेल्के ने मौके पर पहुंचकर तस्दीक की और कार्रवाई अंजाम दी। छापे के दौरान 53 बंडल कॉपर केबल बरामद की गई, जिसकी कीमत तकरीबन 17,10,000 रुपये बताई गई है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल होने वाला ट्रक, जिसका नंबर MH12CH 5290 है, जिसकी मालियत तकरीबन 25 लाख रुपये, और एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर MH25 PBD 5538 है, जिसकी मालियत 1,25,000 रुपये भी जब्त की गई है। कुल जब्त शुदा मालियत 43,35,000 रुपये है। पुलिस के मुताबिक ये टोली गुज़िश्ता 2 बरसों से वाशी और उस्मानाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म थी और करोड़ों रुपये की केबल चोरी करने का शुबा है। इस मामले में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई जारी है। कंपनी के नुमाइंदे की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और मजीद तफ्तीश पुलिस इंस्पेक्टर शंकर शिंदे कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की ख्वाहिश पर महाशिवरात्रि के मौके पर एलोरा के घृणेश्वर मंदिर और अतराफ में चलाई गई खुसूसी मुहिम। अवामी नुमाइंदों, सरकारी अफसरान, मुलाजिमीन, NGOs और अवाम ने लिया मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा। सेंट्रल मारिड की जानिब से घाटी अस्पताल के अहाते में मारिड कॉन 2026 के तहत ऑर्गन एग्जीबिशन मुनक़िद। राब्ता वजीर संजय शिरसाट समेत मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने दी नुमाइश को विजिट। वर्ल्ड रेडियो डे के मौके पर आज शहर में किया गया रेडियो नुमाइश का एहतमाम। मुख्तलिफ कंपनियों के 75 मॉडल्स एग्जीबिशन में शामिल। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत ने साबित किया आज भी लोग करते हैं रेडियो सुनना पसंद। और जिला नांदेड़ के मजाफात डोंगर गांव में एक पोल्ट्री फार्म में लगी भयानक आग। 1000 बेजुबान मुर्गियों समेत दीगर सामान जलकर खाक। पोल्ट्री फार्म ओनर का लाखों रुपयों का नुकसान। हुकूमत और इंतजामिया से इंसाफ का किया मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।